آج کا یہ پروگرام آل انڈیا علماء بورڈ اور مولانا آزاد پیرامیڈیکل اینڈ ہاسپٹل سہارنپور دیوبند، یہ دونوں کے اشتراک سے آج کا عنوان یہ ہے کہ آج کی شروعات بمبئی سے ہے۔ بمبئی اور ہندوستان کے جو علماء اور ائمہ ہیں، حفاظ کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اپنی امامت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہیں مسجد میں بہت کم ہوتی ہیں، تو یقینی بات ہے بہت ساری دشواریاں بھی پیش آتی ہیں۔ تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ آغاز کیا گیا ہے کہ علماء کو روزگار سے جوڑیں گے اور یونانی طب کی پوری معلومات دے کر کے ان کو پھر ایک سند دیا جائے گا، پھر دوائیں بھی ان کو کمپنیوں کے ذریعے جو کئی کمپنیوں سے بات ہوئی ہے انہیں کنسیشن ریٹ پہ دوا بھی دلائی جائے گی۔ یہ آج کے علماء بورڈ کے پروگرام کا عنوان ہے۔ دیکھیے، مجھے جو کہا گیا تھا کہ یہاں پر میڈیکل کورس کے سلسلے میں علماء کرام کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کر سکیں اور ساتھ میں ایک ایکسٹرا کچھ مالی فائدہ بھی ان کو ہو جائے، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہمارے علماء کرام اور ائمہ کرام کے حالات جو پورے ملک میں جس طرح سے ہیں بہت افسوسناک ہیں۔ اس طرح کی جو لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم نے بھی مبارکباد پیش کی ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کہا کہ کچھ لوگوں کو روزی روزگار کا انتظام کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں آج سب نے جو پیپر کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ عورتیں آج آزاد ہیں جن کے لیے کوئی سہارا نہیں بن پاتا، کوئی راستہ نہیں نکل پاتا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھی بات۔ میں محمد شمیم اختر ندوی آل انڈیا علماء بورڈ کا آرگنائزیشن سیکریٹری ہوں۔ ابھی آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، جو پروگرام چل رہا ہے، اور آپ نے ابھی جس موضوع کو چھیڑا ہے وہ نہایت حساس موضوع ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، اور ایسی بھی خواتین ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی خواتین اور ایسی عورتوں کے لیے آل انڈیا علماء بورڈ کیا کر رہی ہے یا دیگر تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ ابھی کرونا کال گزرا، 2 سال لوگ بہت پریشان رہے۔ آل انڈیا علماء بورڈ نے اس وقت مرد و خواتین کے فرق کو مٹاتے ہوئے اور ہندو مسلم کے فرق کو مٹاتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا تقریباً ہر گھر اور ہر در پہ پہنچ کے ان کی مدد کرنے کی آل انڈیا علماء بورڈ نے کوشش کی ہے۔ آج ہم لوگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ آل انڈیا علماء بورڈ علماء کے لیے ایک فنڈ اکٹھا کرے گی، اس لیے کہ بہت سارے علماء وہ ہیں جو بے روزگار ہیں، معاشی ان کو استحکام نصیب نہیں ہے، اور انہی کو استحکام دینے کے لیے آج کی یہ روزگار کنونشن منعقد ہوئی، جہاں طب یونانی ہم انہیں سکھائیں گے اور ان کو اس پلیٹ فارم پہ لائیں گے کہ یونانی علاج کے ذریعے سے اپنے معاشی استحکام کی کوششیں کر سکیں۔ مستقبل میں ہماری یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان خواتین کے لیے بھی کوئی ایسی اسکیم لے کر کے آئیں جو خواتین بے روزگار ہیں یا جن کی کفالت کرنے والے کوئی نہیں ہے، مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے۔ اب تک ہمارے پاس اس عنوان سے کوئی فنڈ مختص نہیں تھا، اور انشاءاللہ آئندہ اس عنوان پہ بھی ہم کام کریں گے اور خواتین کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ جہاں تک خواتین کو مساوات کا مسئلہ ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کا مسئلہ ہے، تو آل انڈیا علماء بورڈ نے اب تک 1989 سے لے کر اب تک ملک میں جتنے بھی پروگرام کیے ہیں ان پروگرام میں ہم نے عورتوں کو شانہ بشانہ لایا ہے، اپنے ساتھ بیٹھایا ہے۔ ان جس فیلڈ میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں، جو خواتین کام کر رہی ہیں، ان سے ہم نے کام لیا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ ہمارے کنونشن میں دیکھیں گے کہ بہت ساری خواتین شریک ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اگر آپ نے ایک سوال کیا ہے، ہم ہیلتھ کیئر سینٹر بھی چلا رہے ہیں۔ بمبئی میں 4 جگہوں پر فری میڈیکل ڈسپنسری ہماری چل رہی ہے، جہاں بلا کسی فرق و امتیاز کے ہم فری میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو دوائیں بھی دے رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہے ان کے لیے کوئی فنڈ مختص کرنے کا، تو وہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے، آئندہ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ آج علماء کرام
का रोज़गार कन्वेंशन था कि उलमाए किराम को रोज़गार से उनको हिकमत की, तिब की, यूनानी दवाओं की मालूमात दे के हम उन्हें खुद कफ़ील बनाना चाहते हैं, जिसके लिए तकरीबन जो है 250 उलमाए किराम ने अभी तक रजिस्टर करवाया है। और हमें जो कॉल आ रहे हैं और जो उस पर हमें ऑनलाइन जो फार्म भरे गए हैं, बम्बई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के तमाम रियासत और शहरों से, बल्कि बहरीन से भी एक फ़ार्म भरा गया है और उसमें ख़वातीन भी फार्म भरा है। तो गोया कि इसकी ज़रूरत है समाज के अंदर कि वो हिकमत सीखे और वो तिब्ब यूनानी की वो मालूमात हासिल करे और समाज में फ़रोग़ दे। उससे ये होगा कि वो खुद कफ़ील बनेंगे और यूनानी दवा को फ़रोग़ हासिल होगा। दूसरी बात ये है कि आज रबी अव्वल की 11 तारीख़ है, बल्कि अब 12 ही तारीख शुरू हो गया, जिसे 12 तारीख को विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इसकी रोशनी में हमने जो है मुत्तहिदा समाज का एक ऐलान दिया है, कॉल दिया है कि हम भारतीय जितने हैं वो सब एक समाज है, भारतीय समाज। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान में देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सब भारतीय समाज एक है। तो हमारा कहना ये है कि तमाम भारतीय भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, सब मिलजुल के रहना है। वो उनके धर्म हो, उनकी बिरादरी हो, उनका ज़ात अपनी जगह, वो अपने धर्म पे अमल करे, अपने बिरादरी के साथ रहे, अपने मसलब को फ़रोग़ दे, लेकिन आपस में टकराव न करे, तशद्दुद न हो, इसमें तनाव पैदा न हो, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहे। इसलिए मुत्तहिदा समाज कन्वेंशन का इनाकाद किया गया है। लेकिन समाज में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे अभी नौजवान जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी ख़ास तौर से मुस्लिम लोग हैं जिनके रोज़गारों के काफ़ी मसले आते हैं, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप तमाम का, मीडिया पर्सनल का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने जो सवाल किया है रोज़गार, ये जो आपने जो सवाल किया है रोज़गार से मरबूत है, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए उलमा बोर्ड ने 3 नुकाती प्रोग्राम ये बनाया है कि रोज़गार, तालीम और जो है सेहत के मामले में इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उलमा बोर्ड का ये नज़रिया ये है कि जितने बेरोज़गार नौजवान हैं या बेरोज़गार नौजवान लड़कियां आज जो बेरोज़गारी के तौर से गुज़र रही हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने का उलमा बोर्ड ने फ़ैसला किया है और इस बात का तहिया भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उन नौजवान लड़कियों को भी दिया जाए। मगर मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि आस तौर पर आजकल लड़कियों को रोज़गार में ज़्यादा मुसलमान हो या और कोई दूसरे कौम के लोग ज़रा ज़्यादा आते हैं, मगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा लोग रोज़गार से मरबूत होने की कोशिश नहीं करते। मगर हमारा एक सबसे अहम प्रोग्राम ये है कि हम एक अवेयरनेस के ज़रिए इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा बोर्ड ने जो प्रोग्राम मुरतब किए हैं उन प्रोग्रामों को सही तरीके से अमलावरी करते हुए तमाम आवाम तक उसको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुतालिका और तलाक़ से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे वक्फ बोर्ड में तेलंगाना में मुतालिका ख़वातीन के लिए 10 से 5,000 माहाना वजीफ़ा उनको मंजूर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं और मंजूर हो भी रहे हैं। मगर इसके लिए मुश्तरका जद्दोजहद बेहद ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से आइम्मा और मौज़नीन का जो प्रोग्राम यूनुस साहब ने और अल्लामा बुनाई साहब ने जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि इमाम की जो अहमियत है उसको उजागर करना बेहद ज़रूरी है। आपके हमारे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी, 1,80,000 लोगों की इमामत की थी और आज के जो इमाम हैं उनको 10,000 और 5,000 की तनख्वाह पे मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल है। और मैं नहीं समझता कि इस महंगाई के दौर में अब आप एक थोड़ी सी अगर मिसाल ले लेंगे तो एक मामूली अगर एक छोटा सा भी अगर हम घर लेंगे तो उसके लिए 10,000 से ज़्यादा उसका किराया है। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इमाम और मौज़नीन जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अरबी तालीम दे रहे हैं, तो ये आपकी, हमारी और तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन आइम्मा और मौज़ूदीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है मौक़िफ़ फ़राहम करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी के ज़राए फ़राहम करना बेहद ज़रूरी है। प्रोग्राम वगैरह में हर जगह पे उनकी हाज़िरी रहती है और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं हर चीज़ों के रोज़ी रोज़गार के बारे में और बहुत सारी संस्थाएं और ये लोगों की जानकारी जैसे एजुकेशन वगैरह ये सब के बारे में। तो हम जानेंगे आज आपने स्पीच कर रहे थे कि वहाँ पे मदरसे वगैरह तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन आज ये रोज़गार का काफ़ी मसला है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। आप बताएंगे कि क्या
क्या हल निकल सकता है इसके बारे में? इसमें हल तो ये निकल सकता है, एक हल की कोशिश की जा रही है कि एक ट्रेनिंग कोर्स किया जा रहा है जिसमें 100 उलमा कराम या इमाम मसाजिद हैं, उनको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद उनका पूरा इंतज़ाम किया जाएगा कि वो आगे प्रैक्टिस कर सकें, और इस तरह के मुख्तलिफ़ कोर्सेज से उनको जोड़ने की कोशिश होते रहना चाहिए, क्योंकि फ़ारिगीन जो मदरसे से हिफ्ज़ और आलमियत का कोर्स करने वाला जो है उसका एक समाज में एक मर्तबा है, वो बहुत हमारे लिए बहुत मोहतरम होता है। तो उनको उनकी तालीम के मुताबिक, उनके रुतबे के मुताबिक रोज़गार मिलना चाहिए, और इसी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ये कोशिश जो है पहली कोशिश है, और इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब रहेगी, क्योंकि तमाम लोग इसमें बहुत इखलास के साथ काम कर रहे हैं। कि बच्चों के लिए तो खैर ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादातर पढ़ाई के मसले होते हैं, और भी बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे शादी होने के बाद में या शादी तक का या कोई भी ऐसी बातें रहती, तो उसके लिए आपकी क्या हेल्प रहेगी? देखिए, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में ख़वातीन का विंग भी है, हमारे साथ में ख़वातीन भी जुड़ी हुई हैं। तो हमने उनको ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो हमारी बच्चियों के रिश्तों के ताल्लुक़ से फ़िक्र करें, और हमारी बच्चियों के फ्यूचर के ताल्लुक़ से वो उस पर मेहनत करें। जो बच्चियाँ हमारी कॉलेजों में जा रही हैं, उनसे वो मुलाकातें रखें, किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या ज़रूरत है, उसका वो ख्याल करें। तो इंशाअल्लाह उस पर भी हम कोशिश करेंगे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और रिश्तों के एतबार से, चूँकि आजकल एक बहुत बड़ा मसला है जहेज़ का, कि बहुत सारी बच्चियों की हमारी उम्रें निकल रही जहेज़ की वजह से, तो हम उलमा बोर्ड ने ये भी पहल की है इंशाअल्लाह, और इसको हम मुल्क के अलग अलग शहरों में जाएंगे कि जिन बच्चियों की शादियाँ जहेज़ की वजह से नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह उलमा बोर्ड उनकी शादियों का इंतज़ाम भी करके देगा। और बच्चियों की शादी हो चुकी है और दहेज का मसला शुरू है, और कहीं ना कहीं हर वक्त वो ससुराल में टॉर्चर खा रही हैं, लड़कियां घर पे आके बैठ चुकी हैं, उनके बारे में क्या उनके लिए इंशाअल्लाह हम इफ़ाम व तफ़हीम वाला मसला करेंगे। उनके लिए उनको बैठेंगे, उनके ससुराल वालों को, और उनको मिला करके बीच में कुछ रास्ता निकालने की कोशिश। देखिए, आपस के इख्तलाफ का हल बातचीत से ही होता है, डायलॉग से ही होता है। तो उनसे घर वालों से डायलॉग करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई ये चीज़ कितनी बुरी है जहेज़, या क्या मसला है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ गलत फहमियाँ भी होती है, तो इंशाअल्लाह हम उनको गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे।